position in animal kingdom? Taxonomic position in animal kingdom. So, strictly speaking, first of all, any living member as an organism body is supposed to be placed in animal kingdom by considering that their body is organized by some cells. So what is the number of cells? On the basis of number of cells the body is made up of, the whole animal kingdom first of all is broadly being considered into two types. The first two subdivision are protozoa and metazoa. Although as per the strict rules of the taxonomy, protozoa is no more considered as a part of animal kingdom, else it has been kept in two kingdom classification, जिसमें अंश हैकल ने प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रख दिया by considering unicellular body. But what actually now I am discussing regarding tissues, तो उसमें इसको consider कर रहे हैं because हम PMT के question crack करते हुए जो points बनते हैं reasoning assertions या कुछ concluding conceptual questions, उसमें एक consideration है कि any organism taken in this living world and especially with reference of animal kingdom, the body is made up of the basic unit cells. But how many cells? On that basis, these first primitive animal like ठीक है ना, primitive animal like protozoa members, they are unicellular body and henceforth tissue is absent. So they automatically being knocked out under that race of having tissue or not. टिश्यू होगा कि नहीं होगा इस रेस में वो ऐसे नॉक आउट हो गए बाय सिंपली हैविंग यूनिसेलुलर बॉडी, क्योंकि अर्लियर वी हैव कंक्लूडेड द डेफिनेशन दैट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज्ड सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन. तो वो चीज यहाँ नहीं पाया जाता है ड्यू टू द फिनोमेना व्हाट वी कॉल प्रोटोप्लाज्मिक level of organization, and that too being accompanied by what we call, there is no division of physiological labor. क्योंकि यही तो वो ड्राइविंग फोर्स है. लास्ट डे मैंने यही पंच लाइन लिखा था और टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर एक्सिस्टेंस में आने की बात कही थी. तो जब ये है ही नहीं, देयर इज नो नीड, सिंगल सेल ही सारे लाइफ प्रोसेसेस एग्जिबिट करते हुए उस ऑर्गेनिज्म को परस्यू करने में, सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है, तो थिंग्स आर गोइंग वेल. नो डिविजन ऑफ फिजियोलॉजिकल लेबर. So now let us move to metazoa. The word metazoa itself suggests that they are those organisms who as animal being recognized as metazoa, they are fulfilling the first requirement of tissue formation to be being multicellular. पहला requirement fulfill करते हैं. But does all metazoa are alike? The answer is again no. So now what the position of the tissue arise in animal kingdom? अब tissue कैसे क्या position लेगा? क्या वाकई में शुरुआत हो चुकी होगी? Again a hurdle, एक बीच में रुकावट आती है कि खुद metazoa again further are of two types by considering, that is eumetazoa and parazoa arrangement condition. What does the parazoa word itself suggest? है ना, in between. Para means in between, zoa means animal, zoa. But and such an animal who are partly primitive and partly advanced, partly primitive and partly advanced, in between situation, parazoa.
And the parazoa term itself suggests that they are multicellular, truly multicellular hai, but point to be noted, they are not fulfilling the next requirement of tissue formation, and a germ layer absent. Germ layer absent, and so does the tissue level organization is absent. So the first very phylum of animal kingdom, indeed from where the animal kingdom actually begins. Example, phylum Porifera. The members are better commonly known as sponges. They lack the presence of tissue, indeed absence of tissue due to absence of germ layer. यानी गैस्ट्रुलर स्टेज से गुजरते हुए germ layer नहीं बनता उनमें, absence of germ layer, पैराजोआ कंडीशन. बट हाँ, बॉडी मल्टीसेलुलर है, exhibiting cellular level of body organization. Cellular level of body organization. And better than this, parazoa is at least advanced than protozoa, because consequently उसका जो परिणाम निकल के आता है कि एटलीस्ट एक ही काम को करने के लिए एक से ज्यादा सेल्स हैं. तो little division of labor begins. Little division of labor begins among this group. And thereafter what start is the word U itself suggests true multicellularity. The term and that reveals that eumetazoa members, as a result of true multicellularity, first of all, germ layer develops, and conditionally two cases are there. Either thereafter animals are diploblastic or triploblastic. Due to the diploblastic condition, the organism is going to develop two germ layers respectively, and ecto and endoderm, followed by, if the members are triploblastic, then they will have got an additional third layer, ectoderm, followed by mesoderm, and rest endoderm तो होगा ही. तो good physiological division of labor at various degree. And hereafter you could say three condition arises from here. Either the organism body is going to have a specialized tissues dedicated to perform all the physiological function, यानी जिसको हम कह सकते हैं tissue level organization. Either next आगे even और advanced members पाए जा सकते हैं कि thereafter the members could have even organs, dedicated organs to perform specialized function, organ level organization, and at last organ system level of organization. ये तीनों conditions यहां से आगे पाया जा सकता है, बशर्ते provided germ layers होना चाहिए, either diplo या triplo. But those members
who have got डिप्लोब्लास्टिक, उनमें सिर्फ दो ही तरह के टिश्यूज हो सकते हैं, नर्वस टिश्यू और दोनों से मिलकर बनने वाला, एक्टो से भी और एंडो से बनने वाला एपिथेलियल टिश्यू. Those members in animal kingdom who have got diploblastic condition, what condition? Two germ layers. They couldn't have the all four tissue type as such. Among the four जो हमने at last list out किया था, उनमें सिर्फ दो ही हो सकते हैं. The reason is क्योंकि रेस्ट जो क्या बोलते हैं टिश्यू टाइप है वो मीजोडर्म से ही बनते हैं, कनेक्टिव एंड मसल्स. एंड एपिथेलियम बीइंग वेरिड, उसका एक वेरिड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है, वो दोनों से ही बन सकते हैं. सो सच अ कंडीशन, नाउ द क्वेश्चन इज the next two sequential phylum which follow this rule are respectively Coelentrates and Ctenophora. Coelentrates and Ctenophora members. Both are diploblastic and experience and share the presence of two types of tissues among the four. और ये प्रेजेंटेशन, ये फ्लो चार्ट रिवील कर रहा है कि इन एनिमल किंगडम, पॉइंट टू बी नोटेड, in animal kingdom टिश्यू फॉर दी, किस टाइप का टिश्यू वो एक बात की बात है, लेकिन सबसे पहले टिश्यू कहां रहा है? टिश्यू फॉर फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड अराइज इन फाइलम Coelentrates, यानी निडेरियंस, है ना, निडेरियंस. दैट्स द कंक्लूजन. सबसे पहले Coelentrates से स्टार्ट हुआ है, जबकि पहला फाइलम जो है exhibiting a little division of labor, sponges porifera, they lack the tissue. और दोनों में टिश्यू ना होने के कारण अलग अलग है. इसमें जर्म लेयर ना होने की वजह से टिश्यू नहीं है, जबकि मल्टीसेलुलर है, और ये है यूनिसेलुलर. दैट्स द प्रोटोजोआ एंड पैराजोआ डिफरेंस. ट्रू tissue formation requires eumetazoa condition. Now this is a correct statement. And what does the eumetazoa term itself suggest? ये रहा उसका explanation. तो finally next condition arise कि एक्टोडर्म से फिर से देखिए नर्वस टिश्यू, मीजोडर्म से मस्कुलर टिश्यू, और तीनों को मिलाकर एपिथेलियल टिश्यू, यानी फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थ ऑनवर्ड्स, फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक एक जनरल टर्म लिख देता हूं, हेल्मिन्स, जिसमें दोनों इंक्लूड हो गए, दोनों सक्सेसिव फाइलम इंक्लूड हो गए, टिल हेमिकॉर्डेट्स. ओनली 3 टिश्यू टाइप प्रेजेंट, सिर्फ 3 ही टिश्यूज मौजूद होते हैं. सो व्हाट्स दैट नेक्स्ट कंक्लूजन? In animal kingdom, the 4 typical tissue, including
मतलब इसमें से अभी तक कौन डेवलप नहीं हुआ, कौन एग्जिस्टेंस में नहीं आया? The conclusion is the tissue type what we want to learn basically among the animal kingdom with taking reference of human body है ना, in animal kingdom, लेकिन animals लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पर. The four typical tissue including connective tissue only found among chordates. Only found among chordates. तो जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना चालू करेंगे आने वाले दिनों में, तब आपको मैं और जस्टिफाई करूंगा व्हाई डू ओनली कॉर्डेट्स. आज तो एक फैक्ट की तरह आपको बात चला, where we was taking the topic to initiate the class, taxonomic position of tissue in animal kingdom. So last day what we did, we simply have taken the introductory lecture, what is a tissue, how it is being defined, उसके existence में आने के पीछे driving force क्या था. The only technical term is advancement in the body structure. लाइफ जो स्पीसीज की तरह इस पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगह मौजूद है, जब इवॉल्व होते होते लाइफ ने आपको ट्रांजिट किया, चेंज किया, एडवांस किया, तो एडवांसमेंट नीड सप्लीमेंट ऑफ सम बेटर फंक्शनिंग ऑफ व्हाट, लाइफ प्रोसेसेस. वही जिंदा रहने के सर्वाइवल वैल्यूज के जो बेसिक एक्टिविटीज है, उनको और बेहतर प्रिसीशन और इफेक्टिव वे से एग्जीक्यूट करने के लिए every organism do need the presence of a set of systems बनते हैं ऑर्गन से, ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज से, टिश्यूज सेल से बनते हैं. लेकिन ऐसा क्या घटना हो, इवेंट हो, जो बहुत सारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स को एक जैसे दिखने में, स्ट्रक्चर वाइज, ओरिजिन में और कुछ असेंबल करके तैयार हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, टू गिव द नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट वी कॉल टिश्यू. तो टिश्यू की वो डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री और सारी बातें, जो स्पेशली टिश्यू बनने का जो एक प्रोसेस है, सेल का डिवाइड और डिफरेंशिएट करना, जो एक जेनेटिक्स का हिस्सा है, वो डिस्कस करने वाली बात. लेकिन हिस्टोजेनेसिस क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, किस स्टेज में होता है, और उसका उद्देश्य है पहले जर्म लेयर्स हासिल करना. क्या हासिल करना? इन बातों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्योंकि इस बात से ही तय होगा वेदर अ ऑर्गेनिज्म, हुएवर इन लिविंग वर्ल्ड, Monera, Protista, fungus, plants or animals, who is going to actually exhibit the presence and formation of tissue, है ना? It is only the plants and animals. जबकि जिस मल्टीसेलुलैरिटी को हम एक मेजर फैक्टर मान रहे हैं, वो तो फंगस में भी है, बट दे डजंट हैव गॉट द टिश्यू. बस उसका एक्सप्लेनेशन और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किंगडम फंगस के साथ आप एक्सपीरियंस करेंगे. सून आई मूव्ड टू, मैं बेसिक क्वेरी आपके सामने जनरेट करके सीधा एनिमल किंगडम के रेफरेंस में आ गया. जूलॉजी की क्लास चल रही है, और व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ टिश्यू इन एनिमल किंगडम. जो बीचैट ने ये टर्म एनिमल किंगडम के लिए दिया है, वही बात अगर हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो दैट इज द होल सिनेरियो, एंड दीज आर द टू प्राइम कंक्लूजन. Yes, as at last you could say the whole animal have four typical tissue type, but none of all the animals have all the four tissue, है ना, at a time. किसी के पास सिर्फ 2 है, कुछ मेंबर्स के पास केवल 3 है. तो उनके शरीर में चीजों को जोड़ना, कनेक्ट करना, वो सारी एक्टिविटी कौन कर रहा होगा? कुछ दूसरा कोई प्रिमिटिव स्ट्रक्चर. कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह कुछ और स्ट्रक्चर्स होगा. आने वाले दिनों में यही तो मैं बेसिक बातें आपके सामने क्वेरीज की तरह छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि जिस दिन टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे यही बात साबित होगा, और मैं जस्ट रिवील कराऊंगा. याद करिए, हिस्टोलॉजी पढ़ते हुए कहा था कि राइट फ्रॉम हेलमिन्स टिल हेमिकॉर्डेट्स ऑल हैव गॉट द 3 टिश्यूज, क्योंकि उनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स और किसी भी मेंबर के नाम से जब बात कर रहे होंगे, इन सब का तो नाम आएगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू का नाम नहीं आएगा. उसकी जगह मैं वर्ड यूज करूंगा, किसी में मिजोग्लिया, किसी में बोलूंगा मिजनकाइम, किसी में बोलूंगा पैरेनकाइमा. क्या बोलेंगे? ऐसे टर्म्स यूज करेंगे. ये प्रिमिटिव कनेक्टिव टिश्यू है, जो लोअर फाइलम्स इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं. किन में पाए जाते हैं? फिलहाल ये जो लिस्ट लिखा है, दे आर ऑल इनवर्टिब्रेट्स. ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर एंड ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, जो उसका टेक्सचर है, जिस तरह की उसकी कंपोजिशन, बनावट है, शरीर के स्ट्रक्चर को जोड़ना, शेप, साइज, सब कुछ देने के लिए जो जिम्मेदार है, एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव.
उसका काम ही है शरीर में अलग अलग तरह से कनेक्टिविटी लाना टू अचीव सम वर्सटाइल फंक्शंस एंड एबिलिटीज फॉर द बॉडी। वो तो एक हायर ऑर्गेनिज्म को चाहिए, और पूरे एनिमल किंगडम में कॉर्डेट से बेहतर हायर ऑर्गेनिज्म, वास्ट और अलग अलग तरह के एनवायरमेंट में रहना सबसे कॉस्मोपॉलिटन फाइलम है। कैसा फाइलम है? कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर तरह के बायोजोग्राफिकल एरिया में, क्योंकि सारे नॉन कॉर्डेट्स तो मेरीन वाटर एक्वाटिक फॉर्म है, यस और नो, एक्सक्लूडिंग सम मोलस्का एंड आर्थ्रोपोड, जो कुछ मेंबर्स थोड़े बहुत बाहर आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल। बाकी सब आप अक्सर टेक्सोनॉमी पढ़ते हुए पहला ही लाइन पढ़ोगे, ऑल द मेंबर्स आर प्राइमरीली एक्वाटिक, फलाना ढिमका, मेरीन एंड फ्रेश वाटर। अरे यस और नो? तो नेचर ने उन सब के फीचर्स कन्फाइंड कर दिए कि तुम्हें तो पानी से ही बाहर नहीं निकलना है, तो तुम्हारे शरीर के वही सारे फीचर्स कुछ ऐसे कर देते हैं। लेकिन दोज हु कम फ्रॉम द अप टू द लैंड एंड दे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनका शरीर फिर कभी कभी पानी पे भी एक्सपोज होता है। अरे यस और नो? क्या मेंढक पानी से बाहर आने का कभी जाता नहीं है क्या पानी में? स्नेक, ठीक है, बर्थ उसका लैंड में हुआ हैचिंग से, लेकिन शिकार करते करते पानी में भी तो चला जाता है। अरे यस और नो? तो वी आर फंडामेंटली प्राइमरीली वी आर ऑल्सो टेरेस्ट्रियल, बट जरूरत पड़ने पे हमारा शरीर भी तो एक्सपोज होता है वाटर बॉडी के अंदर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, तो मछली से लेकर या साइक्लोस्टोम, यानी टेक्सोनॉमी में आपको ग्रुप जो पढ़ना है कॉर्डेट्स का, सिफेलोकॉर्डेट्स से शुरू करते हुए, मैं तो चलो साइक्लोस्टोम से ही कह रहा हूं, वर्टिब्रेट्स, जॉलेस वर्टिब्रेट्स। कैसे वर्टिब्रेट्स? तो वर्टिब्रेट्स साइक्लोस्टोम से लेकर मैमल्स तक एट अ ग्लांस आंख बंद करके एक एक मेंबर रिकॉग्नाइज कर लो। सब लोग अलग अलग तरह के हैबिटेट को एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट लाइफ, और जो जितना वर्सेटाइल हैबिट का एक्सपीरियंस करेगा डेफिनेटली उसको उतना ही एडवांसमेंट चाहिए। मतलब राउंड द क्लॉक आप देख रहे हो कि हम टॉपिक के इर्द गिर्द आ जाते हैं उसी बेसिक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। और इन सब के पीछे बिहाइंड द, बोलते ना बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे कौन है? टिश्यूज। बड़ा सा बड़ा आपको बॉडी ऑर्गेनाइज जो दिख रहा है, भव्य ऐसा कॉम्प्लेक्स बना हुआ, लेकिन बोलते ना बेसिक लेवल पे कौन काम कर रहा है? टिश्यूज आपस में ऑर्गेनाइज होकर उस काम को अंजाम देने में हेल्प कर रहा है। तो वॉट एवर फीचर जो आपके पास है, मैं बात कर रहा हूं वॉइस प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ सम टिश्यू। विच टिश्यू? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। विच टिश्यू? जिससे हमारा वोकल कॉर्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वोकल कॉर्ड्स। तो फंक्शन वही मैं कह रहा हूं, फिजियोलॉजी है वॉइस प्रोडक्शन। फिजियोलॉजी क्या है? वॉइस प्रोडक्शन। लेकिन उस फिजियोलॉजी के पीछे कौन कौन सी वो व्यवस्था, हिंदी में जिसे कहते हैं, व्हाट इज दैट अरेंजमेंट, दैट बायोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो लास्ट डे वही मैंने आपके सामने यहां पर एक प्रिटेंशन किया था, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, anatomy, physiology and anything above the organism and the body, individual body गिनती में, that the science begins called ecology। अब उस इकोलॉजी को तुम स्पीसीज लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करो, इकोसिस्टम लेवल पे या बायोस्फीयर लेवल, वो तो एक वास्ट साइंस है अपने आप में इकोलॉजी। सबको आ रही मेरी बात समझ में? एकदम क्लियर? सबने ये नोट डाउन कर लिया है? सिंगल सेल बॉडी, एक सेल के अंदर सारे फंक्शंस कौन करता है? प्रोटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म ही होता है, दैट्स मींस प्रोटोप्लाज्मिक लेवल।
So let us begin the first prime tissue type, epithelium tissue. So if I'm not mistaken, as per the sequence of the synopsis, मैं उम्मीद करता हूँ सारे aspects देख चुके हैं, and that was the introduction to the topic, to the chapter, and finally the conclusion was there are 4 typical tissue. So let us begin histologically किसी tissue को कैसे deal किया जाता है, right? तो epithelium tissue general account. The word epithelia proposed by Rushk, where the term epi means above and thelia means to cover. This is the tissue which has been designed by nature. This is the tissue which has been basically designed by the nature to give a finishing lining, covering to every structure, whatever it actually assembles. किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी को शेप एंड साइज और फिनिशिंग देने के लिए, आखिरी जो टचिंग लेयर बनाने के लिए इसको जनरेट किया गया है. दैट्स द मेन एम. हाँ, इसके अलावा फिर वो एडिशनली डिपेंडिंग की बॉडी के कैसे सरफेसेस, एक्सटर्नल इंटरनल सरफेस और किसी भी स्ट्रक्चर को लाइनिंग कर रहा है, इसके अलावा उसको जिसको कह सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस देयर आफ्टर बाय द एनवायरनमेंट. वो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, अकॉर्डिंगली वो फिर कुछ एडिशनल मॉडिफिकेशंस और फंक्शंस भी करता है. और इसी बात को तो साबित करेंगे, एंड दैट्स द नेचर ऑफ द लर्निंग. क्योंकि हिस्टोलॉजी द साइंस इटसेल्फ मींस किसी भी टिश्यू को उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और अरेंजमेंट को समझते हुए सारे बातों को डिस्कस करना, डील करना. दैट्स द साइंस कॉल्ड हिस्टोलॉजी. तो epithelia, the term has been proposed by Rushk and Evab to cover. If it is so, then last day synopsis लिखवाते हुए मैंने कहा था, to better deal with any topic, the best way is let us characterize the features. To recognize any tissue to be as an epithelium tissue, definitely it shares some basic properties, what they are. फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एनिमल बॉडी में 2 टिश्यू बने, किसी में 3 बने, किसी में 4 मौजूद होते हैं. ऐसा 4 मौजूद टिश्यू तो सिर्फ एक ही फाइलम में मिलता है. द क्वेश्चन इज, पूरे एनिमल किंगडम में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो अपने बर्थ और एग्जिस्टेंस से पहले जब उसके शरीर में गैस्ट्रुलेशन, हिस्टोजेनेसिस चल रहा होगा, सबसे पहला टिश्यू कौन सा बनेगा जो तीनों में से किसी भी एक जर्म लेयर को यूज करके बने, चाहे एक्टोडर्म, चाहे मेसोडर्म, चाहे एंडोडर्म. इट इज द फर्स्ट टिश्यू to arise oblique evolve in the body of an organism. ठीक है. नेक्स्ट, it is the tissue which offer, I repeat, it is the tissue which offer first line of defense. First line of defense to the body. किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी एक तरह से उसको हम कहते हैं innate oblique non-specific immunity. Definitely I am going to justify the statement in the upcoming examples and features. लेकिन आज ये स्टेटमेंट आपके सामने आया है. सही बात है, किसी का भी शरीर, क्योंकि अगर ये कवरिंग कर रहा है, कवरिंग करके पैरेलली सिंक्रोनाइज करते हुए क्या है, शरीर को प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है. एंड दैट प्रोटेक्शन, दैट रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू रेजिस्ट द बॉडी, शरीर को बचाना, फ्री करना, that is offering a physical barrier. The better term is what? बस इस टिश्यू की मौजूदगी ही अपने आप में एक बाधा बन जाता है, physical barrier. Now suppose if I take the example of human body and skin,
Skin is an organ made up of tissue. The topmost layer called epidermis, multi-layered, is made up of stratified keratinized squamous epithelium. भले मैंने आपको मान के चलिए अभी आपको नहीं पता है एपिथेलियम कितने टाइप के हैं, किस नाम से, कैसे उनके फीचर्स है, बट मैंने अभी आपके सामने एक एपिथेलिया का नाम लिया. इट इज वन ऑफ द 18 डिफरेंट टाइप्स. आने वाले दिनों में जो आप 18 तरह के एपिथेलिया पढ़ोगे उनमें से एक एपिथेलिया का मैंने नाम लिया, और ये बॉडी में एक्सक्लूसिवली सिर्फ यही बनाता है और कहीं नहीं मौजूद होता है. Stratified squamous keratinized epithelia is there to present and make epidermis of skin. तो केराटिन नाम का जो प्रोटीन, टॉप लेयर के सेल्स जो डेड हो जाते हैं उस प्रोटीन की वजह से डेड सेल्स का टॉप कवरिंग मौजूद है, और केराटिन के वजह से, केराटिनाइज होने की वजह से पूरा शरीर बाहर ही बाहर एक स्टेट ऑफ हेल्थ के साथ इंटैक्ट हेल्दी स्किन थ्रू आउट द बॉडी एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर. Because there is no such pathogen and known agents who have ever got those enzymes जो keratin जैसे प्रोटीन को तोड़ सके. तो thanks to the nature कि any bacteria or any such harmful bacteria indeed pathogens जिनको हम कह सकते हैं virus ever happens to cross this barrier, अपने आप तो वो cross नहीं कर सकते. So we could say that rather skin is playing that physiological role due to this characteristic histology what we call epithelium tissue की मौजूदगी से. जर्म प्रूफ कैसा हो गया, और सिर्फ ना केवल जर्म प्रूफ हो रहा है बल्कि कुछ एडिशनल ऐसे भी अरेंजमेंट्स है. यही केराटिन की वजह से पूरा स्किन नॉन पोरस बनता है. क्या बनता है? यानी वाटर प्रूफ. क्या बन जाता है? इवन इफ यू जस्ट गेट सिंक इन द वाटर बॉडी, बारिश में भीग गए, नहा के निकले हैं, कहीं कुदा दिया फ्रेंड ने ऐसे, एंड यू जस्ट जन यू व्हेन कम फ्रॉम, शरीर पूरा गीला हो गया. बट ऐसा थोड़ी है कि किसी को कह रहे हैं भैया पकड़ो दोनों तरफ से और कपड़े की तरह निचोड़ दो. द वाटर कुडंट एंटर द अंडरलाइंग लेयर्स. जो अंडरलाइंग लेयर्स है वो एंटर नहीं कर सकता बिकॉज वो ऊपर से झड़ जाता है. दैट्स द अरेंजमेंट. तो वट एवर सो, तो ये तो मैंने अपनी बात को जस्टिफाई किया और शुरू हो चुका है. और ऐसा काम करते हुए अब आप इसका एक वर्सटाइल, अगेन एपिथेलियम भी एक वर्सटाइल टिश्यू है. कवरिंग के लिए तो जाना ही जाता है, उसका काम ही है कवरिंग, और कवरिंग करके ये सब काम कर रहा है. एंड दैट्स द बिगिनिंग ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक. आपने पहले दो ये पॉइंट्स लिखे, सक्सेसिव पॉइंट्स. लेट अस कंटिन्यू देन देयर आफ्टर. ओके, made up of two basic components. Made up of two basic components. दो बेसिक कंपोनेंट्स के बने होते हैं. बीइंग अ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स तो होंगे ही, फॉलोड बाय अ ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड टिप ऑफ टंग. क्लास भी सब ऐसे ही वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए. घर पे जाके सिर्फ 15 मिनट का रिवीजन करना है आपको कि आज हमने ये पढ़ा और इसके ये पॉइंट्स हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना है. ठीक है, ये बीइंग स्टार्टअप देने के बाद अल्टीमेटली एपिथेलियम टिश्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एपिथेलिया हैविंग बेसिक स्ट्रक्चर व्हिच हैव गॉट दोस टू कंपोनेंट्स, ग्रुप ऑफ सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. एंड इफ इट इज सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, cells are of three basic shape. जो भी सेल्स है वो तीन बेसिक शेप के हो सकते हैं. व्हाट दे आर? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. फ्लैट, cuboid or elongated, है ना, column shaped elongated cells. Then cells are tightly attached
cells are tightly attached to each other. Cells are tightly attached to each other. सेल्स है वो एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड है बाय प्रेजेंस ऑफ तो मैं आपको सिर्फ थ्योरी और लिटरेचर और इंडीड सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा रहा हूं. आई एम ऑल्सो मेकिंग यू टू राइट डाउन हाउ टू मेक द नोट्स. जिन पॉइंट्स, जिन सेंटेंसेस, जिन टर्म्स को अलग कलर से लिख रहा हूं, बस वही तो हाईलाइटिंग की पॉइंट्स हैं. आ रहा है सबको समझ में? तो एवरी टाइम ये बोलने वाली अब बात नहीं रहेगी. कुछ चीज होती है ना, मतलब सीखने वाली बात. एक समय आता है कि अब सीख गए हैं. मैन मेक द सोसाइटी, सोसाइटी मेक्स द मैन. ये जो प्रोवर्ब कहा गया है. अच्छा, कुछ चीजें या तो हम सिखा जाते हैं लोगों को या हम सीख लेते हैं समाज से. तो आप फॉलो करें. द सेल्स आर ऑफ 3 बेसिक शेप, ठीक है. और व्हाट नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इट एक्चुअली फॉलो, कि ठीक है सेल्स दे हैव टू गेट ऑर्गेनाइज, अरेंज टुगेदर. तो वो जो एक साथ अरेंज होते हैं, अरेंज होने का एक खास तरीका, टाइटली अटैच, टाइल्स लाइक फिटिंग, है ना. तो दैट इज बाय प्रेजेंस ऑफ सम यूनिक अटैचिंग स्ट्रक्चर्स व्हाट आर कॉल्ड सेल जंक्शंस. यानी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रखना है कि इस पूरे टॉपिक में सेल जंक्शन क्या है. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर डिफरेंट स्ट्रोक. कुछ हटकर व्हाट आर सेल जंक्शंस. हालांकि वो अपने आप में एक साइटोलॉजी का टॉपिक है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स के मॉडिफिकेशन से परस्पर जक्स्टापोजिशन सेल्स एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट बनाते हैं. अब वो कांटेक्ट कितना इंग्रेस, नजदीकी होगा, कितना दूर दूर होगा, गैप के साथ होगा, अलाउइंग सम स्पेस एंड मेनी सच रिक्वायरमेंट्स जो कि किसी भी दो सेल के बीच होना चाहिए. फिर प्लांट्स में कौन से होते हैं, एनिमल्स में कौन से होते हैं. और एनिमल्स में जो सेल जंक्शंस होते हैं, फिलहाल एक एनिमल बॉडी में 4 टिश्यूज में से सिर्फ 2 ही ऐसे टिश्यूज है जो शो करते हैं प्रेजेंस ऑफ सेल जंक्शंस. नंबर 1 एपिथेलियम टिश्यू एंड नंबर 2 मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू भी खुद 3 तरह के होते हैं. उनमें से कौन सा मस्कुलर टिश्यू सेल जंक्शन शो करता है और कौन नहीं करता है. नाउ दिस इज, ये है वो प्रिसीशन, ये है वो बारीकी जो टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लियर रहना चाहिए. और इस तरह से पढ़ने का ये नेचर, इस टॉपिक का ही नेचर ये है. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोलॉजी. फिलहाल आपके सामने हाईलाइटेड टर्म है सेल जंक्शंस. अब अगला पॉइंट इसकी कनेक्टिविटी में ही. लेट अस कंटिन्यू. Due to tight attachments, no intercellular space. This tissue is characterized by presence of no intercellular space. ये एब्सेंस ऑफ, आपस में सेल्स के बीच बिल्कुल जगह की गुंजाइश नहीं है. जबकि कनेक्टिव टिश्यू इज जस्ट ऑपोजिट. उसमें होगा, क्योंकि सेल्स आर डिस्क्रीट. वहां भी सेल्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड, बट हाउ अरेंज्ड? डिस्क्रीट, फैले हुए, दूर दूर, मैट्रिक्स के अंदर धसे हुए रहते हैं. दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स. जबकि यहां सेल्स पहले खुद लेयर्स की तरह अरेंज होते हैं. किसकी तरह? लेयर्स. चाहे इस शेप के सारे सेल्स सब एक जैसे स्ट्रक्चर के होने चाहिए, या फिर इस तरह के. वो तो मैंने बताया सेल्स हैं, लेकिन सेल्स खुद शेप वाइज 3 तरह के होते हैं. यही तो क्लासिफिकेशन का बेसिस बनेगा आगे चल के. देखो है तो बड़ा सा सिंपल टॉपिक एपिथेलियम टिश्यू, मोर और लेस सबने थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा होगा. लेकिन आज जब मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और एक बार पढ़ा दिया मतलब हो गया. अब इसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं, बस ऐसे याद रखना है. और आज के बाद बैठे बैठे 15 मिनट में पूरा एपिथेलियम टिश्यू रिवाइज हो जाना चाहिए मेंटली कि ऐसा ऐसा है. ठीक है ना. एपिथेलियम टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल these features, और at a glance if we list out, these are the prime statements which are applicable on epithelium tissue. all are correct statement. तो ठीक है, सेल्स के शेप, सारे में से कोई भी सेल जैसे जैसे अरेंज होंगे, उनका अटैचमेंट, अरेंज का भी एक तरीका, एक दूसरे से बिल्कुल टाइल्स जैसे सटे हुए, जक्स्टापोजिशन सेल जंक्शंस की वजह से जुड़ के, और उसके कारण इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. ठीक है. नाउ layers of cell या layer of cells arrange themselves
on a non-cellular, on an, है ना, non-cellular layer. जो सेल्स टाइटली अटैच होकर एक लेयर की तरह बनते हैं, लेयर ऑफ, एक लेयर बना, लेयर ऑफ सेल्स अरेंज देमसेल्फ ऑन अ नॉन सेलुलर. तो एपिथेलियम टिश्यू में एक सेलुलर लेयर होता है जो सेल्स का बनता है, तीनों में से किसी भी सेल का बने, और वो खुद जिस लेयर पर अरेंज होता है, पर अरेंज होता है, ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट. So the next context of discussion would be in sequence. The basement membrane itself is chemically composed of the basement membrane itself is chemically composed of mucopolysaccharide, where the mucopolysaccharide itself is made up of two components, a cementing material hyaluronic acid plus glycoprotein. सैकराइड वर्ड ये एग्जिबिट करता है कि उसमें शुगर भी मौजूद है, एंड रेस्ट प्रोटीन वर्ड है, hyaluronic acid तो एक सीमेंटिंग मटेरियल है. तो म्यूको वर्ड मीन्स प्रोटीनस पार्ट, पॉलीसैकराइड polymer of saccharide sugar, that is glyco sugar present. The basement membrane itself is chemically composed of mucopolysaccharide, hyaluronic acid plus glycoprotein. अगला पॉइंट, basement membrane is produced, basement membrane कौन बनाता है? is produced by both, जो उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स हैं उससे भी बनता है. basement membrane is produced by both epithelium cells as well as cells in underlying. बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसको कौन बना रहा है? ठीक है, केमिकली ऐसा बना होता है, लेकिन उसका सिक्रीशन समय समय पे रिप्लेस होता है, बनता है. उसको कौन जनरेट करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? खुद वो एपिथेलियम सेल्स जो उसके ऊपर अरेंज है वो भी बनाते हैं, बोथ, यानी कोई दूसरा कौन है? एज वेल एज सेल्स इन अंडरलाइंग, ठीक उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है. यहीं की यहीं नोट बना के लिखिएगा, इसी पॉइंट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में नोट लिखिएगा, ऑलवेज लूज कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट. कनेक्टिव टिश्यू तो अलग अलग तरह के होते हैं, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? हमेशा एपिथेलियम, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होना, मतलब एपिथेलियम टिश्यू के नीचे. ऑलवेज ऑल एपिथेलियम इज सपोर्टेड. एपिथेलियम का लेयर कहीं भी शरीर में मौजूद हो, ठीक है, हमेशा उसके नीचे कौन सा टिश्यू मौजूद होगा? कनेक्टिव टिश्यू. विच कनेक्टिव टिश्यू? नोट, ऑलवेज लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर जिसे हम कहते हैं, इज प्रेजेंट बिलो epithelium, below epithelium.
Basement membrane is made up of two layers. खुद बेसमेंट मेम्ब्रेन दो लेयर के बने होते हैं. बेसल लेमिना, बेसल रेटिकुलरिस. Basement membrane itself is made up of two layers, basal lamina and basal reticularis. अगला स्टेटमेंट डेंजर साइन के साथ, दैट इज epithelium tissue itself is avascular. What does the term avascular suggest? That is absence of blood vessel supply. वेस्कुलराइजेशन नहीं है, ब्लड वेसल्स जो है विद इन द टिश्यू नहीं है. और कैसे हो सकता है? द रीजन इज दे आर टाइटली अटैच्ड. देयर इज नो स्पेस फॉर द ब्लड कैपिलरीज टू इनफिल्ट्रेट और गुजर जाए सेल्स के बीच में से. नाउ द क्वेश्चन अराइज, देन द लिविंग सेल्स जो भी वो एपिथेलियम है रिस्पेक्टिवली, वो कैसे वो जिंदा रहते हैं? उनको उनका न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस कहाँ से मिलता है? Epithelial cells receive their nutrients and oxygen from underlying connective tissue by simple diffusion. By सिंपल डिफ्यूजन से धीरे धीरे जो अंडरलाइंग सेल्स, ये सब बातें मैं डायग्राम में प्रूव कर दूंगा. आप तो पहले लिख के आज के बाद मतलब एपिथेलियम टिश्यूज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. नाउ दैट्स द सीक्वेंस, दैट्स द वे यू शुड रिकॉग्नाइज रिगार्डिंग एपिथेलियम टिश्यू, वन आफ्टर द अदर, कि ये सब बातें लागू होती है. तो दे रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू बाय सिंपल डिफ्यूजन. ये पॉइंट तो पहले से ही पता था, बस यहां लिस्टिंग करना था. Embryonically, epithelium originate from all the three germ layers, ecto, meso and endoderm. Nutritionally, the epithelium requires presence of vitamin A2
presence of vitamin A2. Nutritionally, the epithelium requires presence of vitamin A2. Chemically it is dihydroretinol. Alphabetical name followed by the chemical name. तो requires presence of vitamin A2. Vitamin A1 विजन के लिए चाहिए, डार्क विजन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके. विटामिन A2 थ्रू आउट द बॉडी, जहां कहीं भी अंदर बाहर किसी भी स्ट्रक्चर में जो सरफेस बने हुए हैं, चाहे वो आंखों का कॉर्निया हो, उसका कंजक्टिवल लेयर वो भी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना है, चाहे वो स्किन हो, थ्रू आउट लिप्स, अंदर बकल कैविटी, हर जगह जहां जहां भी एपिथेलियम मौजूद है, न्यूट्रिशनली उनके सेल्स को अपने मेंटेनेंस के लिए इन डाइट, और अगर डाइट में ये मौजूद है पर्याप्त जितना चाहिए, दैट बिकम्स बैलेंस डाइट फॉर दैट पर्सन रिगार्डिंग epithelium tissue and its maintenance. Moreover, to perform some special physiological function, moreover to perform some special physiological function to body apart from covering. कवरिंग तो उसका रोल है ही एपिथेलियम का, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो बात रखी गई है. बट नाउ द क्वेश्चन अराइज, मोर ओवर टू परफॉर्म सम स्पेशल फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू बॉडी अपार्ट फ्रॉम कवरिंग, epithelial cells possess following additional structures. Following additional structures. Cilia, stereocilia, cilia, stereocilia, microvilli. Accordingly, that epithelium will be rather ciliated epithelium. है ना, और जिसपे स्टीरियोसिलिया तो वो स्टीरियोसिलिएटेड होगा, एपिथेलियम बन जाएगा. और जिसमें माइक्रोविलाई मौजूद होगा, that will rather become brush border epithelium. Ciliated epithelium will help in what we call propelling. किसी चीज को धकेलना है ना, propelling, कंडक्शन में हेल्प करेंगे. है ना, ये सिक्रीशंस एंड होल्डिंग, पकड़ बनाने में हेल्प करते हैं. और ब्रश बॉर्डर जो है, इंक्रीज सरफेस एरिया. तो ये प्राइमरी बातें हैं जो मेंशन कर दे रहे कैरेक्टरिस्टिक्स साथ. तो जिसमें जब जब हम टिश्यू आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको देखेंगे नजदीक से, तो ये बातें जस्टिफाई हो जाएंगी कि हाउ इट इज पॉसिबल कि इनके प्रेजेंस से क्या एडिशनल फंक्शन, एरिया वाइज बॉडी में कवरिंग तो वहां होगा ही, बट एडिशनली ये सब क्या फायदा मिलने वाला है. And at last but not least, that is epithelia based on number of
layers of cell. Now again एपिथेलिया खुद दो तरह से होंगे, ब्रॉडली स्पीकिंग कवरिंग का काम तो करना है, बट रिस्पेक्टिव उन पर मौजूद जो सेल के लेयर्स हैं, लेयर ऑफ सेल जिसको लिखा था, लेयर ऑफ सेल्स लिखा था, एक लेयर मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ये तो एक्सपेक्टेड है, दैट इज बेसिक एपिथेलियम. लेकिन व्हेन द लेयर मूव्स एंड इंक्रीज फ्रॉम मोर देन वन, टू एंड मोर देन टू, so that is epithelia based on number of layers of cell are of two types. Accordingly, epithelia are called simple epithelia. उसी कोई compound oblique stratified epithelia. Strata word मतलब ही जो है layers, layer after layer, strata. लिख लिया सबने? कंप्लीट? Now, as we have characterized the properties of epithelium tissue, और जो भी बातें सामने आई हैं, let us elucidate and explore it by an illustration. So that illustration we will go through the heading basic structure of epithelium tissue. पहले मैं एक आर्बिट्री प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, राइट? एक आर्बिट्री प्रेजेंटेशन मतलब इलस्ट्रेशन के फॉर्म में, एक्चुअल नहीं, बाय कंसिडरिंग एक इमेजिनेशन के साथ कि एक डॉटेड लाइन के साथ गिवन स्पेस ऑक्युपाई करते हुए, नाउ दिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन केमिकली, और खुद बेसमेंट मेम्ब्रेन दो लेयर्स के बने होते हैं, तो बस आप थोड़ा सा पहली बार डिफरेंशिएट कर सके, इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैंने ऐसे बनाया है. और सो कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन का ऊपर का लेयर कहलाता है बेसल लेमिना, ठीक है, और नीचे वाला लेयर कहलाता है बेसल रेटिकुलरिस. Flat cells tightly attach.
हालांकि सेंटर में हल्का सा बल्ज होता है क्योंकि न्यूक्लियस राउंड एंड लार्ज, तो वही जो है मेम्ब्रेन को थोड़ा उठाए हुए रखता है। तो ये साइड व्यू है। दिस इज अ साइड व्यू ऑफ द सिंपल squamous epithelia. The name nomenclature has been done on the basis of the cytological histological feature. On the basement membrane, single layer of tightly attached flat cells. Tightly attached, तो जैसा आपको लिखा है उसी को ही फॉलो अप करके ये डायग्राम बना है। And every time the respective epithelium tissue, the underlying tissue, उसके नीचे हमेशा underlying tissue कौन होगा? Loose connective tissue. Now again that is the presentation. ये है loose connective tissue. So basic structure of any epithelium tissue do follow all its characteristic. और सिंस जब जिस दिन आप पढ़ोगे कनेक्टिव टिश्यू तो उसको तो मैं कहूंगा द मैट्रिक्स इज वैस्कुलर, द मैट्रिक्स इज, क्योंकि लॉट ऑफ स्पेस सेल्स आर, मुझे अभी कनेक्टिव टिश्यू नहीं पढ़ाना है, वो तो बस एक इलस्ट्रेशन मैंने दे दिया, दिस इज द अंडरलाइंग लूज कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसी के अंदर ब्लड वेजल्स तो मौजूद होंगे ना। सो दे आर गोइंग टू ब्रिंग दोज न्यूट्रिएंट सप्लाई जो कि पोर कर देंगे और यहां से फिर धीरे धीरे, बिकॉज दिस मेम्ब्रेन इज पोरस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑल टुगेदर, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ एपिथेलियम सेल्स एंड द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जितने भी पॉइंट्स आपने लिखे एक बार रीडिंग करते हुए इस डायग्राम पे अप्लाई तो करो। सो दैट वाज सिंपली a presentation and illustration of simple squamous epithelia. Now let me come to the practicals कि बॉडी में so called कुछ इस तरह का रिस्पेक्टिव एरियाज में, अभी मैंने क्लासिफिकेशन एग्जांपल पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जिस बेसिक स्ट्रक्चर को बनाया, सपोज मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं कि बॉडी में यही जिसका इलस्ट्रेशन है ये एपिथेलियम पाया जाता है ना, एग्जांपल लिखवाता हूं मैं, नहीं पता आपको क्या होता है, उस लेयर का नाम है एंडोथीलियम। क्या है? एंडोथीलियम। थीलियम लिखा मतलब एपिथेलिया, एंडो मतलब किसी अंदरूनी लेयर की बात हो रही, इनर मोस्ट, सबसे अंदर का कहीं का लेयर है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया एक अंदरूनी लेयर बनाते हुए कहीं मौजूद है किसी में, कहां, और उसलिए उसको नाम दिया एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ऑफ, गौर करिएगा क्या लिखा है, ब्लड वेसल, एंड ब्लड वेसल इज एन ऑर्गन। शरीर में मौजूद एक ब्लड वेसल क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन ऑफ विच सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है मैंने लिख दिया, लेकिन लेट मी जस्टिफाई। सपोज दिस इज द आर्टरी। ब्लड वेसल बॉडी में तीन तरह के होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। कैपिलरी तो एक्चुअली टिश्यू कहलाता है, आर्टरी और वेन है ऑर्गन, क्योंकि कैपिलरी तो सिंगल लेयर, सिर्फ एपिथेलियम सेल्स का एक पतला सा लेयर होता है ट्यूब जैसा, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू। उसको ऑर्गन बोलना गलत होगा। ऑर्गन तो सिर्फ दो तरह के ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरी एंड वेन। तो आर्टरी की अपनी एक थिकनेस है, अंदर ल्यूमन है, पाइपलाइन की तरह है, पाइपलाइन की तरह है तो उसका कुछ तो वॉल होगा, आर्ट्रियल वॉल क्या होगा, जिस है ना, और ब्लड ल्यूमन में से ब्लड अंदर गुजर रहा होगा। तो नाउ दिस इज एन आर्टरी एज एन ऑर्गन। द आर्ट्रियल वॉल इटसेल्फ, जो आर्ट्रियल वॉल है वो भी सक्सेसिवली 3 लेयर्स के बने। कितने लेयर्स के बने?
ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, middle layer, outer layer, and the innermost layer, innermost layer ये जो थिकनेस है ये सिंगल सेल्ड कितना, और ये सेल समझ गए आप? So this layer is histologically tunica interna, but made up of which histological layer? Tissue. Which tissue? Epithelium tissue. Due to its position, it is being named endothelium of, but made up of simple squamous epithelia. आ रहा है समझ में सबको? ये मैं ही खुश हो रहा हूं यहां पर? एवरीवन? सो ऑर्गन लेवल और ऑर्गन से आगे फिजियोलॉजी पढ़ते समय उसकी जो फंक्शनिंग और दुनिया भर की बातें जो हम इंटरमिंगल करके कोरिलेट करके और हायर साइड पढ़ते हैं, तो राइट डे वन से मैं कह रहा हूं फिजियोलॉजी तभी समझ में आएगा जब एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी क्लियर हो, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी तभी समझ में आएगा जब हिस्टोलॉजी क्लियर हो, और हिस्टोलॉजी तभी समझ में आएगा जब आप बॉटनी में साइटोलॉजी ध्यान मतलब होता है ना ध्यान से और ढंग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेल लेवल की हैं, बट व्हेन ऑल सेल्स असेंबल each with each other and then they propagate and work together, there's the beginning called histology. तो चाहे plant cell हो animal cell हो, being a cell they possess some basic features in common, but since they are going to be a part of two different body, animal kingdom, plant kingdom, with some difference, plant cells and animal cells, दोनों यूकैरियोटिक है, ये सिमिलैरिटी है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिमिलैरिटी है, लेकिन प्लांट्स में कब माइटोकॉन्ड्रिया किस बॉडी के किस सेल में ज्यादा होगा, एनिमल में कौन से सेल में उससे भी कम होगा, और किसी सेल में बहुत ज्यादा होगा. नाउ दिस इज द वेराइटी, क्योंकि जो जितना मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, जो जितना उसमें उतनी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ज्यादा होगा. तो ये सेल लेवल की बातें हैं. दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स वो हर कोई जवाब दे जरूरी नहीं है, वो तो एक सेल लेवल की बातें हैं. बिलो दैट वो एक अलग साइंस है, साइटोलॉजी किसी भी शरीर का. लेकिन हमारा जो स्पीयर ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हुआ है अगले लेवल से, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं शुरू से एक शब्द दे रहा हूं, हिस्टोलॉजी, एंड दैट्स योर रोल. तो आज के बाद मतलब ये हो गया, दैट्स द नैरो होता है वेन में, ल्यूमन जो ब्रॉड होता है, क्योंकि इसमें ब्लड कम से कम क्रॉस सेक्शनल एरिया में ज्यादा प्रेशर से बहेगा, वहां क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, स्लो बहेगा. लॉ ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड्स में पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ते हो ना, बर्नौलीज थ्योरम यही कहता है. अरे सबको आ रही मेरी बात समझ में? तो फिजिक्स तो यहां तक है, लेकिन उस फिजिक्स के नियमों को शरीर के अंदर लागू करने के लिए जो बायोलॉजिकल अरेंजमेंट है वो आप यहां पढ़ रहे हैं. सबको मेरी बात आ गई समझ में? तो फाइनली दैट्स द नेचर ऑफ द टॉपिक. ये जस्टिफाई करने का एक मेरा तरीका था कि जो पॉइंट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक लिस्टिंग की है आपने, क्या ये वाकई में लागू होता है? यस इट्स डू. और एक बहुत ही सिंपल सा सबसे बेसिक एपिथीलिया का डायग्राम बना के उसको मैंने डायग्राम से प्रूव किया कि देखिए कैसे बॉडी में कहाँ मौजूद है. तो ऐसा किसी भी एपिथीलिया का नाम और उसकी पॉइंट्स लिखवाने के बाद जो एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, हो सकता है कि आप अभी बहुत लोग हैं आप में से इमेजिन ना कर पाए कि पता नहीं ये एपिथीलियम वाला जगह कैसे मौजूद है. तो नथिंग टू वरी. ऐसे तो तुम दूसरे सब्जेक्ट्स में भी तुम्हें बहुत कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी हाँ यस कर लेते हो ना. तो ऐसा ही थोड़ी देर जूलॉजी में भी परसिवरेंस क्या रखना, अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब धैर्य. आने वाले दिनों में आ जाएगा समझ में, क्योंकि फिर वो टर्म और वो टिश्यू में किसी ना किसी ऑर्गन में बनाऊंगा. अरे सबको मेरी बात आ रही समझ में?
ये तो आज एक प्रेजेंटेशन था कि अगर मैं मान के चलो ये नहीं बनाता और डायरेक्टली पढ़ाना चालू कर देता, लिखो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलिया, ये फीचर्स, एग्जांपल एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, एल्वुलाई ऑफ लंग्स, पोडोसाइट लेयर ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, लिखते जाओ, लिखते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं होगा कुछ, है ना। अब ये तो पॉसिबल नहीं ना कि मैं हर एग्जांपल लिखूं और तुरंत उसको समझाऊं कि देखो कैसे पाया जाता है, वो तो एक दिन आएगा वो समझ में आपको। लेकिन उस दिन ये डायग्राम अगर फिर बनाऊंगा और मैं यहाँ लेबलिंग करके लिख दूंगा, फिर ये कोई मुझसे पूछेगा सर व्हाट डज इट मीन, मैं कूद जाऊंगा, ये तुम्हें धक्का मार दूंगा। अरे यस और नो, समझ गए ना, क्योंकि उस दिन फिर ये क्या है वो थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है वो पढ़ाया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो यही है तरीका, सेट स्टैंडर्ड। कोई एक्चुअली कुछ होता नहीं है, मैंने क्या क्या प्रूफ हो जाएगा कि आज हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे थे लो लेवल, फिर एक दिन और ऊपर हाई लेवल, ऐसा कुछ नहीं है, सब लेवल में ही है, एवरीथिंग इज इन लेवल, बस सिंक्रोनाइज रहे, है ना, सिंक्रोनाइज रहे।
So now, as per the sequel of the synopsis, the next topic of discussion begins regarding classification of epithelia, right? Now, before I begin the workout of classification, let us consider 3 points under consideration. That is, the first basis of classification is on the basis of function. Epithelia broadly being classified by considering the what function it is going to perform all over for the body, followed by number of layers, and then shape of cells. Shape of cells. There are 3 different criteria which we consider concurrent, one after the other, to classify the epithelium tissue. So let's begin. Epithelia broadly could be of 3 types on the basis of function. The very first function what the epithelia is known for by its name is covering. But as I have already suggested in my previous explanation in the characteristics, that it do perform some additional functions for the body, and indeed to perform all those, वो सारे चीज़ों को एविडेंटली वो शरीर को और कंट्रीब्यूट कर सके, वो अपने आप को स्पेशलाइज कर लेता है एंड दोज स्ट्रक्चर्स एडिशनल वो डिराइव कर लेता है. तो पॉइंट टू बी नोटेड, रादर देयर आर सम एपिथेलिया इन द बॉडी, दे आर नोन फॉर देयर स्पेशल फंक्शन. मतलब कवरिंग के लिए फिर वो नहीं जाने जाते, दे आर रादर, कवरिंग तो वो करता ही, उसकी मौजूदगी कवरिंग है ही. ठीक है, टाइल्स लग रहे हैं, टाइल्स हर जगह कवरिंग ही करेगा, लेकिन ग्राउंड में लगना समझ में आता है, दिन भर उस पर रफ एंड टफ वॉक होगा. बट बहुत से ऐसे भी फिनिशिंग वर्क होते हैं किसी भी घर को कंस्ट्रक्ट और इंटीरियर में, कि वहां पर एक फिनिशिंग वर्क देना, उन पर कौन सा दिन भर कवर करके स्ट्रेस उसको झेलना है, कुछ नहीं बस. बट देयर प्रेजेंस गिव सम स्पेशल लुक टू द इंटीरियर्स. तो वैसे ही शरीर में भी देयर आर सम सर्फेसेस, कुछ ऐसे बोलते ना एरियाज हैं जहां वो कवरिंग तो करेगा ही क्योंकि मौजूद है, being an epithelia, but rather they are known to execute and promote some other functions, better known as specialized epithelia. और कुछ एपिथेलिया तो इतने स्पेशल हो जाते हैं कि रादर उनके मॉडिफिकेशन और डेवलपमेंट से शरीर में ग्लैंड्स जैसे यूनिक ऑर्गन बन जाते हैं, एंड सच ऑल एपिथेलिया आर बेटर नोन एज. अब एनसीईआरटी में ये और ये डिस्कस्ड है, ये नहीं है. बट इफ यू गो थ्रू अक्रॉस एनी क्वेश्चन एंड बुक्स, जो भी आप रेफर करोगे, आपको ऑप्शंस में कुछ नाम मिलेंगे, और उस समय वो चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए. आउट ऑफ कोर्स कुछ ऐसा नहीं होता है, सब आप पढ़ते हैं, सब मतलब मोर और लेस एविडेंटली कंसेप्चुअली कोर्स के अंदर से पूछा जाता है. तो कवरिंग एपिथेलिया, ठीक है, ये पहला कंसिडरेशन हो गया. ठीक है, कवरिंग के अलावा नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बीइंग अप्लाइड देयर आफ्टर. कवरिंग एपिथेलिया इटसेल्फ ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर, सिंपल एंड, मैं स्ट्रेटिफाइड वर्ड यूज करूंगा. कंपाउंड ठीक है, बट मोर रिलेक्टेंट वर्ड जो अक्सर आप पाएंगे बुक्स में वो है स्ट्रेटिफाइड वर्ड. तो सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, सिंपल सिंगल, वन बेसमेंट मेम्ब्रेन ओवर दैट प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंपल. बट सिंपल सेल्स हैं, सेल्स का शेप भी है. नाउ सिंपल तो है, बट ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स, squamous, cuboidal and columnar.
क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर में घबराने वाली बात नहीं है, नाम उनका जो हो रहा है उनके फंक्शन और एक सीरीज में हर, देखिए नामकरण जिसे हम कहते हैं, नॉमेनक्लेचर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, समाज में भी अलग अलग लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम को करने के लिए नाम देते हैं, टेक्निकल टर्म्स देते हैं, किसी चीज को कंसिडर करके। इवन नेम्स आर केप्ट इन दी सोसाइटी। किसी घर में बच्चे का बर्थ होता है ना, कोई कह रहा है झुंझुनू, कोई कह रहा है टेडपोल, ऐसे ही मतलब ज्यादा बायोलॉजी पढ़ लिया तो नाम रख दिया प्यार से। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? मतलब एक ऑफिशियल नेम होता है और एक ऐसी जो जैसा है जिसके मन में ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। चाइनीज कल्चर वेरी गुड, बच्चा यहाँ बर्थ लेता है और तुरंत वो बर्तन गिरा देते हैं और जैसी आवाज वो नाम, चिंग चंग चुंग टिंग। तो कहने का मतलब ये है कि covering simple squamous on the basis of function, number of layers and shape of cells। तो नाम क्या पड़ेगा? simple squamous covering epithelia, the first among the 18। मैं लिस्टिंग कर दूंगा पूरे 18 एक साथ सामने, लेकिन उसको याद करने के लिए कोई, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस की बैठ के और देख के चक्कर खा गए ग्लूकोज पी के याद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिंपल फॉलो तो करो कैसे मैं इधर नाम दे रहा हूं उनको, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। बट इसके कोई सब टाइप नहीं है। बट क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल कवरिंग तो होता ही है, बट अगर उनमें से कुछ जगहों पे इफ दे पोजेस सीलिया, तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल सिंपल कवरिंग एपिथेलिया। मतलब ये तो है ही, एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर मतलब माइक्रोविलाय मौजूद होगा, वो तो सब डायग्राम्स में समझ में आएगा। अभी तो मैं सिर्फ नॉमेनक्लेचर लिस्टिंग कर रहा हूं आपके सामने, हाउ टू क्लासिफाई एपिथेलिया ऑन व्हाट बेसिस। 18 में से 4 के नाम तो अभी अभी आपके सामने आ गए, 1 2 3 4, सबको आया समझ में? सिमिलरली कॉलमनार में फिर 3 कैटेगरीज होते हैं। कितने कैटेगरीज होते हैं? आ रहा है सबको समझ में? कितने कैटेगरीज होते हैं? अगेन सीलिएटेड, स्टीरियोसीलिएटेड, इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ 2, इसमें ये तीसरा जो आ जाएगा वो स्टीरियोसीलिएटेड, और ब्रश बॉर्डर, और ब्रश बॉर्डर। कॉलमनार तो है ही, सिंपल कॉलमनार, लेकिन सिंपल कॉलमनार सीलेटेड, सिंपल कॉलमनार स्टीरियोसीलेटेड, सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर कवरिंग एपिथेलिया। 4 ये 4 ये 8, अभी भी 10 बचे हैं। स्ट्रेटिफाइड पे आइए, मोर देन वन लेयर। लेकिन सबसे टॉप लेयर ऑफ सेल्स कैसे हैं, उनके शेप कैसे हैं? अकॉर्डिंगली अगेन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। सबसे टॉप लेयर ऑफ सेल्स क्यूबॉइडल है, सबसे टॉप लेयर ऑफ सेल्स कॉलमनार है, मोर देन वन। लेकिन सबसे टॉप लेयर सेल्स कैसे हैं? स्क्वामस। अब नेचर में इसके कोई सब टाइप नहीं है, बॉडी में कोई और एग्जांपल नहीं है, बस इतने। लेकिन स्क्वामस खुद 2 तरह के होते हैं, कैराटिनाइज्ड एंड नॉन कैराटिनाइज्ड। कैराटिन मौजूद होगा या नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन बस कैराटिन है कि नहीं है। तो अगेन लेट अस डू द काउंटिंग, 4 4 8 9 10 11 12। नाउ वन ऑफ द एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है, pseudo stratified epithelia appears to be more than one layer but actually single layer। इसलिए मैंने बीचों बीच बनाया, between, it is a mediation between simple and compound stratified। false appearance, pseudo stratified, NCERT special। 13 कितने हो गए?
अभी भी 5 बचे हुए हैं, एंड दोज आर रिस्पेक्टिवली ऑल स्पेशलाइज्ड 4 डिफरेंट टाइप्स. देखिए इनको नाम ही वैसा दिया गया, ट्रांजिशनल एपिथेलिया. मतलब जरूर अपने अंदर कुछ चेंज, परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तन अपने काम को करने के लिए. ट्रांजिशन. पिगमेंटेड मतलब ही दे आर नॉट ओनली देयर टू कवर एंड एक्ट एज अ लेयर बट आल्सो इंपार्ट सम कलर टू द बॉडी पार्ट. और कलर इंपार्ट करते हुए शरीर के लिए कुछ सिग्निफिकेंट फिजियोलॉजिकल रोल कर रहे होंगे. प्रूफ कर लेंगे आगे एक्सप्लेनेशन में, लेकिन आज पता चल गया ऐसा एपिथेलियम है. एंड देयर आफ्टर जर्मिनल, कौन सा एपिथेलिया, और एट लास्ट न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम. है एपिथेलियम लेकिन नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नर्वस सिस्टम के लिए काम कर रहा होता है वहां पर. उसका काम है टू परटेन एंड परस्यू द चेंजेस, परसेप्शंस करना, एहसास दिलाना किसी चीज का, किसी भी चेंज स्टिमुलस को रिसीव करना जरूरत पड़ने पे. ऐसा रोल एपिथेलियम अगर करे, दैट्स व्हाट इट मेक एज न्यूरो सेंसरी. तो अब इनके नाम में अब इनकी कवरिंग का रोल नहीं है. कवरिंग तो ये सब है, अलग अलग जगह कवरिंग रहकर कंडक्शन, सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन सब कर रहे हैं. ये तो उनका सब डे टू बेसिस वर्क है शरीर में एपिथेलिया का. बट सम स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया, दोज 4 17 types, and the last epithelia which modify itself to give rise to all glands in the body. All different glands are secreting unit of the body. आ रहा है सबको समझ में? एवरीवन, दैट्स ग्लैंडुलर. ये तो अपने आप में एक पॉइंट ऑफ, फिर इसकी भी अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे डिफरेंट बेसिस पे. मैं चाहता तो यही बना सकता था, लेकिन पहले आप इतने ही 18 है ना, एक साथ वज्र प्रहार ना किया जाए. अरे सबको आ रही मेरी बात समझ में? बिल्कुल क्लियर. So that's the scenario of epithelium tissue. So next week I will continue from over here. Next class ये complete हो जाएगा आपका epithelium tissue complete. ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, डिस्पर्स ना हो, टेक अ ब्रेक बट डिस्पर्स ना हो. मैं आज बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करा देता हूँ आपको. क्लियर? संजू, सो टुमारो विल रेगुलर ऑफ. तो मैं चाहूँगा कि एक बेसिक स्टार्टअप हो चुका है टॉपिक को लेके, एक आइडिया आपको लग चुका है हाउ टू गिव एन एक्सेल टू योर स्टडी. तो अपार्ट फ्रॉम गोइंग थ्रू दी एनसीईआरटी फॉलोड बाय दी नोट्स जो क्लासरूम में लिखवाया गया एक्सटेम्पोर डिक्टेशंस के साथ, है ना, एक बेसिक आइडिया अब आपको हो चुका है. फॉर एडिशनल नॉलेज और एक कंटिन्यूटी बनाने के लिए इफ यू गो थ्रू दी बुकलेट्स, आपको सभी डिटेलिंग्स, स्पेशली जो सेल जंक्शंस, आज तो मैंने एक आइडिया दे दिया कि है, लेकिन वो अटैचिंग स्ट्रक्चर्स खुद कितने तरह के हैं, कौन कौन किस कारण से मौजूद होते हैं, उनकी क्या खासियत है, ठीक है ना, वो एडिशनल चीज है जो एनसीईआरटी मेंशन नहीं. एनसीईआरटी में तो एक एक लाइन लिखा है कि फलाना जंक्शन लीक नहीं होने देता, फलाना जो है अलाउ करता है क्या, लेकिन बस लाइन. अब क्यों और कैसे, रीजनिंग
एलिमेंट्री, हालांकि बहुत रेयर चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन जूलॉजी सेगमेंट में, हालांकि साइटोलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लेकिन जूलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आ जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन में कुछ ऐसा लिखा हुआ, तो यू शुड नॉट फील द डिले, आप आंसर करना आना चाहिए आपको। तो इस तरह से पूरे प्रेजेंटेशंस दिए हैं, और रेस्ट यू कुड सी, एक थॉरो आप पढ़ के आए, बाकी तो मैं अगले क्लास इसको थोड़ा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।